गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक अपना एस्केप वेलोसिटी। फर्स्ट, एस्केप वेलोसिटी क्या है? तो स्टूडेंट, एस्केप वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी या स्पीड होती है जिससे आपने किसी पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका और वो पार्टिकल अगेन रिटर्न नहीं करता। In this condition, the final velocity of the particle or substance is known to escape velocity. In this, we have that the total energy of the particle, total energy of particle E is equal to kinetic energy K और प्लस पोटेंशियल एनर्जी E is equal to K plus U. First equation. Here we have K is equal to half mv square and potential energy U is equal to minus capital G m E small m upon R E. Given to equation number 2. From equation 1 and 2, E is equal to, put the value of K, half mv square plus minus capital G m E small m upon R E और 1 upon 2 m v square minus capital G m E small m upon R E. Students, here we have a mass of Earth m E and radius of Earth RE. Suppose that a particle placed on the surface of Earth, when we give some speed, suppose v, and particle cross to gravitation area of Earth and around of circle. In this condition, we have that the total energy, if total energy E is equal to 0, then 0 is equal to 1 upon 2 m v square minus capital G m E small m upon R E or 1 upon 2 m v square is equal to G m E small m upon R E and cancel. V square is equal to 2 G m E upon R E. Students, we already know that small g is equal to capital G m E upon R E square. Then G m E is equal to G R E square. So V square is equal to 2 G R E square upon R E. Implies that V square is equal to 2 G R E or take the root, V is equal to root 2 G R E. It is the formula of escape velocity. Students, repeat the topic. Let we have a mass of Earth m E and radius R E. Suppose that a particle placed on the Earth of surface m. If we give some amount of speed, this particle which assume v, then the total energy of the substance or particle
E is equal to sum of the kinetic energy and potential energy. E is equal to K plus U. Here K is equal half mv square and potential energy, जिसको अपने लास्ट अपनी वीडियो में पढ़ा ली है पोटेंशियल एनर्जी को, U is equal minus कैपिटल G m e small m upon r. Equation 1 and equation 2. From the equation number 1 and 2, E is equal to 1 upon 2 mv square plus minus G m e small m upon r. Here G is the universal constant which value 6.67 into 10 power minus 11 Newton into meter square upon kilogram square, plus minus 1 upon 2 mv square minus capital G m e small m upon r. Suppose at particular distance the particle have net energy if the total energy of the substance or particle E is equal to 0, then 0 is equal to half mv square minus capital G m e small m upon r. Half mv square is equal to G m e small m upon r. M cancel, v square is equal to 2 G m e upon r. We already studied small g is equal to capital G m e upon r e square. G m e is equal to G r e square. Put the value of G r e square in this, then we get 2 G r e square upon r e. 1 r e cancel, so v square is equal to 2 G r e and v is equal to under root 2 G r. It is the formula of escape velocity. स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला आपने फाइंड आउट किया, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास बनता है. अब हम ये चाहते हैं कि भाई मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी का. यदि किसी पार्टिकल को मैं अर्थ से ऊपर की ओर फेंकता हूं और मैं चाहता हूं कि वो दोबारा रिटर्न नहीं करे, वो कम बैक नहीं करे, तो मुझे उसकी स्पीड कितनी रखनी होगी. चलिए इसको भी हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन पहले आप इस फॉर्मूले को नोटिस कीजिए. आपके पास फॉर्मूला आ रहा है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GRE. ओके स्टूडेंट्स, 2GRE. हियर स्मॉल g इज द ग्रेविटी एक्सेलरेशन इन RE रेडियस ऑफ अर्थ. यदि आपके पास मान लीजिए हम ये कहें कि सर आप सपोज कीजिए कि आपने इस पार्टिकल को h हाइट पर प्लेस किया, तो नेट हाइट कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है. अर्थ की हाइट तो आपके पास रेडियस के रूप में आर ई काउंट है, तो नेट हाइट कितनी होगी आर ई प्लस एच. तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस आर ई की जगह वैल्यू पुट करेंगे आर ई प्लस एच, क्या आर ई प्लस एच के रूप में. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ डिफरेंस हो रहा है. हम क्वेश्चन में ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी बने, एक लोअर एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए. चलो इसको सॉल्व करते हैं. पहले तो अपन h हाइट के लिए निकाल लेते हैं. फॉर h हाइट r को आपने रिप्लेस किया r e प्लस h, देन एस्केप वेलोसिटी v e इज इक्वल टू अंडर रूट 2G R E प्लस H. इफ देखिए कंडीशन चेंज करना होगा आपको. इफ H इज इक्वल टू 0, देन V E इज इक्वल टू रूट 2G R E. हियर स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड विच आर कांस्टेंट. R E रेडियस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेट 6400 kilometer or change in meter into 10 power 3 meter. Then the final escape velocity v is equal to 2. Put the value of g 9.8 into ओके. चलिए जब आप इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर बनता है v इज इक्वल टू 11.2 into 10 power 3
मीटर पर सेकेंड और VE इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका एस्केप वेलोसिटी का आंसर होता है। स्टूडेंट्स, यहां आपके पास एक ऐसी स्पीड या वेलोसिटी आपको फाइंड आउट हुई जिससे आपने ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर फेंका तो वो दोबारा से अर्थ पर रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने देखा होगा कि जो कोई सैटेलाइट वगैरह जब अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर भेजी जाती है तो वो दोबारा से रिटर्न नहीं करती। जबकि अपन कोई भी स्टोन होता है या कोई ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर फेंकते हैं तो वो दोबारा नीचे गिर जाता है, लेकिन जब सैटेलाइट वगैरह को ऊपर की ओर भेजते हैं तो वो दोबारा रिटर्न नहीं करती है। इसका रीजन यही है कि उस सैटेलाइट का जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रखी जाती है, जिससे वो क्या करता है कि अपने अर्थ के ग्रेविटी अट्रैक्शन को, ग्रेविटी फील्ड को क्रॉस कर जाता है और दोबारा से वो रिटर्न नहीं कर पाता। जैसा कि अपने पढ़ा भी था कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन का चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट और डेप्थ। हाइट अर्थ सरफेस से जब आप ऊपर जाते हैं या अर्थ सरफेस से आप नीचे आते हैं, दोनों ही कंडीशन में ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हमने पढ़ा भी है हमारी क्लास में, ठीक है बच्चों। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि हमें किसी पार्टिकल को इस तरह से फेंकना है कि वो दोबारा से नहीं आए। तो आपके पास उस पार्टिकल का मिनिमम स्पीड या वेलोसिटी v इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, जिससे वो पार्टिकल दोबारा से अर्थ पर रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस क्लास को आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं और वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए ताकि हमें नोटेड रहे कि आप लोग क्लास देख रहे हैं हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।